हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आप लोगों का मेरे वीडियो में और मेरे चैनल में भी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और वो बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरे और वीडियोस मिस ना कर सके। और इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस रैरिटी का कौन सा ब्लॉरल उसमें सबसे अच्छा है। जैसे कि रेयर में तो कौन सा अच्छा है और सुपर एयर में कौन सा अच्छा है, ट्रॉफी रोड में भी होगा। ट्रॉफी रोड में एक्चुअली हम शेली ऐड कर देंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। और इसी के साथ लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट वन on our list is Trophy Road. So in Trophy Road Brawlers, the M's is very good. Like M's has many good abilities to work with. Like Ems can do damage 3 times. She has more range, like so that she can check bush properly. She can attack from a far distance, and the fun thing is that the range of super is equal to the range of his temporary attack named Spray. So it helps is because the whichever enemy she slowdowns, she can attack him. So that's very good. That's like I love that. Another ability of him is like she can just where she walks, his super also goes there. Like uh, like if anyone is just attacking him, a camp busher just came out from nowhere, so you can just use your super and run away, or maybe kill him by using your super. You just slow down him and just shoot from a distance, because camp bushers like Rosa and they don't have much range. So I think any camp busher doesn't have a range except Shelly. I think Shelly has good range. Okay, let's leave that topic and come to Ems. Ems is very good. She does triple damage. She has way more abilities. Like she has normal reloading speed. That's okay. If she had slow, that will be like okay. Ems is good. So Ems is, I checked all the things. Like I checked the win rates. The win rates of Ems is better than anything on it. So, second brawler in our list is none other than, from the rare side, Rosa. Yes, if you guessed Rosa, that's correct. It's Rosa. Rosa is very good. Like it has a combination. It's like very good. Like it is heavyweight. It damages a lot. It can reduce its damage by its super. Like that is very legit thing. And like Rosa does way more damage than anything. Like Rosa, you can say the Rosa is an upgraded version of Primo. Like the Primo with a protecting shield when super. And Rosa is like very good at this. By knowing that Rosa is very good, like you can say, Rosa doesn't need to be explained. It is, you can see it on like certain maps. It is very good. Like its gadget and its star power also matches. Like if you have its gadget that spawns bushes, and you have that star power that will heals you in the bushes, then that is a combination. Like you have to, no, let me just make a push and heal it. So it is very good. Like it can heal with the star power. It can just make pushes to hide. It is a camp busher, plus it has a way more damage, and also it super protects it from certain attacks. It's like Rosa is way simple to explain, but you know that it's way simple to explain, but yeah, that is like you can't explain it
but I don't know what I was speaking. But just I want to say that Rosa is the best rare brawler. Let's move to another one. So, so if you guessed Carl as the best super rare, then you are right. Carl is the best super rare because it has some like abilities to bring his like axe back if it touches wall. It also has an ability in which if you throw the axe at the wall, at the edge of the wall, it will come through the wall. Like that is so good. If someone is taking support of wall, you can just wreck them with this trick. So like that is a big trick. So and he or she, I don't know, I think he's he. So with his super, he just like rotates himself, revolves himself. तो वो उसके साथ मतलब वैसे जाता है जब से वो इतना डैमेज करता है, हम सीओसी की वॉल्क्री जैसा लगने लगता है। लाइक वो भी सबको बहुत डैमेज करती है, वो भी वैसे स्पिन होती रहती है, तो सीओसी की वॉल्क्री जैसा लगता है। सीरियसली ऐसा ही लगता है मुझे तो बस ऐसे ही कार्ल के साथ बहुत अच्छा लगता है खेलने में और मज़ा भी आता है उसके साथ। लाइक कार्ल को यूज़ करना इतना हार्ड नहीं है, लाइक कॉम्प्लिकेटेड है थोड़ा कि आप कैसे मूव करते हो, कैसे क्या करते हो, लेकिन गुड। लाइक वो इतना भी हार्ड नहीं कि आप दो तीन गेम खेलने के बाद सीख ना सको। ओके दैट्स वेरी कूल। ओके सो अगर आप लोग सोच रहे हो कि क्यों मैं ट्रेनिंग के में खेल रहा हूँ, तो ये इसलिए क्योंकि मुझे बी खुली नहीं है। तो अभी के लिए तो आपको सिर्फ ट्रेनिंग के में ही देखना पड़ेगा। तो अभी मुझे बी खुली नहीं है तो मैं आपको ट्रेनिंग के में ही दिखाऊंगा कि बी की स्पेशलिटीज़ क्या हैं, वाई बी सो गुड। एंड मुझे लगता है यार जिसको जो नहीं खुला होता ना, वो उसके लिए मतलब बहुत हो जाता है, लाइक गुड, लाइक प्रूव्स टू बी सो गुड। आज आपको अगर लिगॉन नहीं खुला तो आपको पता है कि लिगॉन बहुत अच्छा है। सो आई एम गोइंग आउट ऑफ टॉपिक। सो बी इज़ वेरी गुड। वो बहुत बहुत ज़्यादा डैमेज करती है। इनफैक्ट इफ़ यू पुट बी एंड पाइपर एट द साइड, बी विल विन। क्योंकि यार बी है जो वो मतलब ऐसे वो नज़दीक से मारे या दूर से मारे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, पर उससे उसको सिर्फ ये फ़र्क पड़ता है कि उसका एक शॉट मतलब एनिमी को हिट होना चाहिए। उससे क्या होता है, उसका दूसरा शॉट ज़्यादा डैमेज करता है, जो कि बहुत अच्छा है। बाकी उसके सुपर की बात करें तो वो भी बहुत अच्छा है, वो स्लो डाउन कर देता है थोड़े सेकेंड्स, मिली सेकेंड्स के लिए। तो तब तक बी उस पर एक अनचार्ज शॉट यूज़ कर सकती है जिससे उसका दूसरा शॉट चार्ज हो, और मे बी कुछ लोगों को तो वो 1 शॉट किल भी कर सकती है। सो लाइक मे बी यू कांट अंडरस्टैंड बट बी इज़ बेटर। सो in Mythic we are facing the Max. So Max is very good Mythic, although it was very hard to like judge on Mythics because Mythic has very like great abilities, like he can fool people, but he genes us suicides when he fool people mostly. So the Tara can pull also, like you can check that black hole. Her super attacks means black hole. तो मतलब ऐसे। और मैक्स की अगर अब हम बात करें तो मैक्स बहुत अच्छी ब्रॉलर है। उसका सुपर होता है कि वो
एक रेडियस में खुद को स्पीड कर देती है, जिससे वो और एनिमीज, अगर एनिमीज की हेल्थ लो हो तो उनको चेस कर सकती है, और खुद की हेल्थ लो हो वो भाग सकती है एनिमीज से। सो इट इज़ वेरी गुड। वो दूसरे ब्रॉलर्स को भी ऐसा दे सकती है जब वो उनके करीब होते हैं। तो मैक्स इज लेजिट यार, व्हाई डोंट यू अंडरस्टैंड? एंड द लेजेंडरी अवार्ड गोज टू लियोन। तो हाँ, लियोन ही है वो ब्रॉलर जो लेजेंडरी में सबसे अच्छा है। मैंने बहुत सारे चेक्स किए, जैसे कि कौन से हिट के बाद क्या इफेक्ट्स होते हैं। तो जैसे कि मतलब स्पाइक के ब्लास्ट होते हैं, स्पाइक्स निकलते हैं जो कि एक्यूरेट नहीं होते, मतलब बहुत कम चांसेस होते हैं कि वो प्लेयर को लगे। तो मतलब वो दैट डज डैमेज, बट that is not like best legendary, that is a legendary। तो क्रो टॉक्सिक देता है, वो अच्छा है, बट लियोन बहुत ज़्यादा डैमेज करता है। वो इनविजिबल हो सकता है, तो वो अटैक में भी यूज़ कर सकता है, फिर वो दुश्मन को कंफ्यूज भी कर सकता है दूसरे ब्रॉलर्स को कि मतलब कैसे कहाँ है, और वो फिर ऐसे पैनिक होके हर जगह अटैक्स करने लगेंगे। तो लियोन इज़ वेरी गुड यार, यू कैन गो रॉन्ग विथ लियोन। यस, लेट्स मूव टू क्रोमैटिक। तो समय की घड़ी आ चुकी है, और आप अब देख ही सकते हैं। हाँ, ये बहुत हार्ड था चूज़ करने में, बिकॉज दोनों के पास, दोनों एकदम ऑपोजिट ब्रॉलर्स थे, दोनों का कुछ भी मैच नहीं था। तो फिर मुझे अलग अलग थोड़े अलग टाइप से देखना पड़ा कि अगर वो अटैक करते तो कितना डैमेज पहुंचाते हैं, कि प्रोबेबिलिटी कितने को डैमेज कर सकते हैं, उनकी स्पीड लाइक ऑल, फिर रिलोडिंग स्पीड और वो सब। तो मैंने देखा कि सर्च के सुपर की वजह से वो मतलब गेल से आगे जाता है। सो आई थॉट गेल इज़ मोर गुड। इनफैक्ट जब मैं ये क्लिप शूट कर रहा था तो मुझे इतना मज़ा आया सर्च से खेलने में कि मैंने ये सबसे ज़्यादा ये क्लिप को शूट किया। लाइक मैंने वैसे बस बहुत हो गया, 1 मिनट तक ही करना है, ये 2 मिनट तक करना है, लेकिन फिर लाइक यार चलो ना और खेल ही लेते हैं। ऑडियंस को भी पता चले कि ये सिर्फ उसकी बात, ये सिर्फ जीतने की बात नहीं है, ये बात है एंटरटेनमेंट। आप मेरे वीडियोस देखते हो तो सिर्फ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए नहीं देखते हो, आपको एंटरटेनमेंट चाहिए। लाइक यू शुड एंजॉय द वीडियो। मतलब ऐसे सिर्फ ऐसे मैं दिखा दूँ कि हाँ भाई ये है, ऐसे मतलब यू शुड एंजॉय। दैट्स लाइक द मेन पॉइंट ऑफ माई चैनल। I will entertain you. You will like, share and subscribe